So the calls are going out. Just a few moments from now, I believe that those calls will stop because everyone needs to reach 7 Lok Kalyan mark at 11:30 a.m. for that Chai Pe Charcha with Prime Minister Narendra Modi. Modi 3.0 now takes shape. As per sources, several names are being speculated to join the Modi cabinet. From the BJP, several ministers are expected to be retained, including veterans Nitin Gadkari, Rajnath Singh, along with Piyush Goyal and Jyotiraditya Scindia. It appears all NDA allies are also being considered for positions within the Union Council of Ministers. From TDP, Ram Mohan Naidu and Chandrasekhar Pemasani may take oath tonight. LJP's Chirag Paswan, JDS Chief H.D. Kumaraswamy, Apna Dal President Anupriya Patel and RLD's Jayant Chaudhary are also likely to be included. The official announcement tonight will confirm the final list for the cabinet. Modi and his new cabinet are set to take oath this evening at 7:15 p.m. at Rashtrapati Bhavan. Before the oath-taking event, Prime Minister Modi paid tribute to Bapu at Rajghat, former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee at Sadaiv Atal, and fallen heroes at the National War Memorial in Delhi. राम मोहन नायडू इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आपको निमंत्रण मिला है, किस तरीके से इसको देखते हैं? बहुत आनंद हो रहा है। इतने कम उम्र में एक केंद्र मंत्री बनने का मौका मिला है, तो मैं अपने नेता चंद्रबाबू नायडू जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और जनसेना के नेता पवन कल्याण जी को, जिन्होंने भी हमारे ऊपर विश्वास रखकर ये पद हमारे ऊपर सौंपा है, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आप पूरे अलग अलग जगहों पर गए हैं, सबसे ज्यादा मतों से जीत करके श्रीकाकुलम से आए हैं। प्रधानमंत्री ने आपको कैबिनेट मंत्री के लिए इतना बड़ा मौका दिया है, आप इसको लेकर के किस तरीके से आंध्र प्रदेश की जनता को लेकर? तो अभी जिस तरह से हमारे मैंडेट आया आंध्र प्रदेश में या देश में, सबके मन में यही था कि एनडीए को फिर से वापस आना चाहिए देश की सरकार में, और आंध्र प्रदेश राज्य में भी उसको अगर डेवलपमेंट होना है तो एनडीए का सरकार वहां पे भी आना चाहिए। उसी सोच के साथ लोगों ने हमें जिताया है, तो उसी सोच के साथ हम आगे भी बढ़ रहे हैं कि जो भी अगर केंद्र से सहायता जो भी लेंगे, वो मंत्री पद का हो या फिर किसी और तरीके से हो, वो सब आंध्रा के बेनिफिट के लिए, आंध्रा के प्रोग्रेस के लिए और देश के प्रोग्रेस के लिए, उसमें हम काम करेंगे। I think I should congratulate the entire country for this, because we are having Honorable Prime Minister Modi ji again as the Prime Minister of India. Swearing in ceremonies today, and yes, with the TDP, we being the partner of India, we are very happy about this. And also, yes, I think we are not going to put it as TDP is extrinsic or TDP is completely overboard, but not, yeah, as a partner of India, we are getting our जो मिनिस्ट्रियल बर्ड्स और व्हाटनॉट। हमको जानकारी नहीं है, अभी हम जा रहे हैं, बात करते हैं, अगर ऐसा कुछ आया होगा तो आपको बता देंगे, छुपाने की कोई बात है नहीं। लेकिन अगर मौका मिलता है तो हम लोग के लिए खुशी की बात है, हमारे पार्टी के लिए बड़ी बात होगी। निश्चित तौर पर मांझी जी का कैरियर 42 साल का कैरियर है और सभी जगह पर काम कर चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उनका एक अनुभव है, बड़ा सा अनुभव है, और अनुभव का लाभ मिलेगा, हम सबको मिलेगा, एनडीए को भी, पार्टी को भी, और बिहार वासियों को, गया वासियों को जरूर कुछ न कुछ ऐसे काम होंगे जो हम लोग के लिए एक बड़ी बात होगी, और हम लोग मेहनत करेंगे अगर मौका मिलता है। My colleague Piyush Mishra is now joining us for more on this. Piyush, as the calls go out to allies to join the Union Council of Ministers, it just gives you a sense of how different this government is going to be from the previous two ones, where the BJP will have to take its coalition partners along and proceed forward into its next 5-year tenure, though of course the India bloc will tell you that this is not going to last. Well, yes, there are claims coming in from India bloc. We also heard Mamata Banerjee yesterday or did a press conference where she claimed that this government is not going to last, and she had also said that she would not take part in oath-taking ceremony. In fact, she also had said that she will not wish best of luck to this government. But what we are learning is that NDA government will have representation from north to south, east to west. Leaders from all states will be there. Annamalai has already got calls who comes from Tamil Nadu,
Jitendra Singh will also make it to the list in few minutes from now. There will be a meeting at 7 Lok Kalyan Marg where we will see the faces coming here. Most likely we can also have a surprise face, because last time you would remember, Paulmi, that suddenly the new face of Didan bureaucrat S. Shankar had come out and he was made the foreign minister. So we can expect a new face also. Absolutely. Today, there could be surprises as well. You don't put that past Narendra Modi that he could just spring a surprise. He could bring in a Hardeep Singh Puri or an S. Shankar and make them a union cabinet minister. So let's take that across to my colleague Himanshu Mishra, who's also joining us live right now from outside the Prime Minister's residence. Himanshu, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, कंफर्म्ड किस को कॉल मिला है? क्योंकि लटियंस दिल्ली में काफी सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इनको कॉल आया, शायद नहीं आया। कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, मोबाइल अपना चेक कर रहे हैं दोबारा। आप बताइए कि किनको कॉल आ चुका है? बिल्कुल पॉल, हम भी अपने मोबाइल का नेटवर्क चेक कर रहे हैं और सभी लोग अपने अपने मोबाइल के नेटवर्क को चेक कर रहे हैं, कहीं कोई ऐसा ना हो कि नेटवर्क खराब हो और कॉल ना आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, इनको तो कॉल आ ही गया है। राम मोहन नायडू, चंद्रशेखर टीडीपी की तरफ से होंगे, रामनाथ ठाकुर जेडीयू से होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कॉल आ गया है, पीयूष गोयल को कॉल आ गया है, राजनाथ सिंह बनने वाले हैं मंत्री, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो पूरे प्रोसेस में शामिल थे कि किसको कब मंत्रिमंडल में जगह मिले, ये सारी चीजों में। और उनके साथ साथ जितेंद्र सिंह को कॉल आया है, राव इंद्रजीत को कॉल आ गया है, एकनाथ खड़से को कॉल आया है, मनोहर लाल खट्टर को कॉल आ गया है, शिवराज सिंह चौहान को कॉल आ गया है, प्रताप राव जाधव एकनाथ शिंदे ग्रुप से हैं, उनको कॉल आ गया है। प्रफुल्ल पटेल को भी ये कहा जा रहा है कि उनको भी कॉल आ चुका है, वो भी कैबिनेट में जो है वो मंत्री बनेंगे। तो तमाम ये वो बड़े चेहरे हैं जिनको कॉल आ गया है, लेकिन बहुत संशय है कि जयशंकर, निर्मला सीतारमण, इनके बारे में अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आ पाई है कि इनको कॉल आया है या नहीं आया है। जैसी जानकारी आएगी, क्योंकि वो बड़े चेहरे हैं जो रायसीना हिल पे बैठते हैं, ये दो चेहरे, निर्मला सीतारमण जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर है और जयशंकर जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, दोनों के पास अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही इनको भी शायद कंफर्मेशन आएगी। और 11:30 बजे प्राइम मिनिस्टर के साथ चाय पे चर्चा होगी और प्राइम मिनिस्टर बताएंगे कि किस स्पीड के साथ उनके साथ काम करना है और किस तरीके के काम करने की उनकी शैली है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, प्रधानमंत्री ये बात हमेशा कहते हैं कि कोई भी फाइल जो है 24 घंटे से ज्यादा आपकी टेबल पे नहीं रहनी चाहिए। कोई भी फाइल आप बिना पढ़े साइन मत कीजिए। ऑफिसर्स यानी ब्यूरोक्रेट्स के साथ जो है आप कोऑर्डिनेशन करके चलिए, लेकिन ऑफिसर्स के झुकाव में आके कोई फैसला नहीं लीजिए। आप जिस चीज का शिलान्यास कर रहे हैं उसका उद्घाटन भी जो है आप ही कीजिए, ये तय करके ही किसी चीज की शुरुआत करनी चाहिए। तो ये तमाम ऐसे इश्यूज होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने कैबिनेट कोलीग्स को आज बताएंगे ओथ स्वेरिंग से पहले। ये तमाम चेहरे जो हैं आपको आने वाले दिनों में दिखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे भी होंगे जो कैबिनेट में नहीं होंगे। क्या उनको ड्रॉप किया जाएगा? क्योंकि कुछ ऐसी कंपल्शंस भी हैं। इन कंपल्शंस में बीजेपी को ये भी तय करना है कि जहां एनडीए के घटक दल हैं यानी एनडीए के अलायंस पार्टनर हैं, उनको जगह देनी है। अगर उनको जगह देनी है तो कुछ संख्या आपको अपनी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की कम करनी होगी और इस पर पुनर्विचार करने के बाद ही जो है आज शपथ ग्रहण की समारोह की तरफ आगे तक बढ़े हैं। बहुत से ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको अभी तक जगह नहीं कॉल नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अर्जुन मेघवाल और भूपेंद्र यादव इनको कॉल आ चुका है। पौलमी जी, Himanshu, they're tracking all those developments. Several of those who've received calls are already on their way to Prime Minister's residence at 7 Lok Kalyan Marg, where he will be hosting them over tea, over chai, and discussing with them how he envisions his new government to function.